Hare Krishna. So in the last class, up to the last class, we had discussed equilibrium problems, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि body was at equilibrium and we were finding different kinds of forces with the help of the condition that sigma fx equals to 0, sigma fy equal to 0, like that net force along x should be 0, net force along y should be 0, like that we were able to find the different kinds of forces, unknown forces which was there in the problem. So today we are going to discuss Newton's second law of motion most specifically. So बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, there are 3 laws of motion given by Sir Isaac Newton. पहला law है that a body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion until and unless acted upon by a net external force. अगर मैं net external force आज के क्लास में नहीं बताया तो मेरे को क्लास में याद दिलाना, बताऊंगा what do you mean by a net and what do you mean by external. What are the significance of these two words? Please remind me in class if I don't tell in the class today. ऑनलाइन क्लास में मेरे को नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको. So this was first law. Second law stated that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. He said that force is directly proportional to the rate of change of momentum. This was second law. First law क्या था? That the body continues to be in its state of motion until acted upon by a net external force. And the second law states that the net external force acting on a body is the rate of change of momentum, proportional to the rate of change of momentum, that is dp by dt. P is basically my momentum. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से देखा गया कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो 1 ही होता है. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है? 1 होता है इस केस में. इसका मतलब F इक्वल्स टू dp by dt हो जाएगा. यहीं से मेरा मास कांस्टेंट होता है. P इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी. तो मास को बाहर ले आएंगे क्योंकि मास कांस्टेंट है. समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे हो जाएगा d by dt ऑफ mv, मोमेंटम है ना. तो ये क्या हो जाएगा? m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, dv by dt बचेगा. पर एक चीज ध्यान रखना, ये जब f लिखते हैं ये क्या है? नेट एक्सटर्नल. ये दो चीज का मतलब मैं आपको समझाऊंगा मोस्टली. अगर नहीं समझा पाया देन आप मेरे को क्लास में याद दिला देना. आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नेट एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज द सेकंड लॉ. थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये सेकंड लॉ है. I am just as a matter of formality telling you these laws. I know you already know it and it's there mentioned in the book also. Still in the exams they ask sometimes. Just as a matter of quick formality एक बार बता दे रहा हूँ मैं. Third law of motion क्या बोलता है? Every action has an equal and opposite reaction. So magnitude wise action and reactions should be equal. They should be opposite in direction and they should act on different bodies. ये 3 पॉइंट होता है एक्शन रिएक्शन का. एक्शन रिएक्शन पेयर जो बनता है दो बॉडीज पे, they are equal in magnitude, they are opposite in direction and they act on different bodies. Like for example, एक टेबल पे अगर एक ऐसे करके बॉक्स रखा हुआ है तो बॉक्स का मास सपोज m है, तो इस पे जो mg लग रहा है, अगर मैं बोलूं इसका रिएक्शन ड्रॉ करो, मतलब इस पे एक्शन लगा, मैं बोलता हूं ये जो mg है ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन वाला फोर्स कौन सा होगा? आप मेरे को सोच के बता सकते हैं? ट्राई करो सोचने का और बताओ इसका रिएक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, किसका होगा, कैसे लगेगा. इस mg का रिएक्शन, ये mg इस पे जो लग रहा है वो एक्शन है, तो रिएक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो मैं बता रहा हूँ, एक बार सोच लेना अच्छे से, फिर देखना स्क्रीन की तरफ. देखो सबसे पहले सोचो, अगर मैं इसको एक्शन फोर्स बोल रहा हूँ तो ये कौन लगा रहा है? mg. टेबल नहीं लगा रहा है, ये mg अर्थ लगा रहा है, राइट. ये mg कौन लगा रहा है? अर्थ. तो ये एक्शन हो गया. इस मास m को अपने तरफ खींच रहा है, ये एक्शन है. तो अर्थ को ये अपने तरफ खींचेगा, ये रिएक्शन हो जाएगा. ये रिएक्शन कौन लगा रहा है? जैसे अर्थ एक्शन लगा रहा था इस मास पे, रिएक्शन m लगाएगा अर्थ पे अपने तरफ खींच के विद सेम मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, दोनों इक्वल होगा. डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होगा, एक नीचे है एक ऊपर है, और एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. एक्शन इस पे लग रहा था, रिएक्शन इस पे लग रहा है. तो ये एक्शन रिएक्शन का बात है. ठीक है, यू नो दिस थिंग्स. आई होप these are some basic things. And if you need more information, of course you can frankly tell me. I'll tell you some more things also. But there is nothing much to discuss on this. But this is very important thing. उसमें ये formula is extremely important. F equals to mass into acceleration. So this particular formula we will be most concentrating in this particular lecture, and we'll see its applications in different scenarios. ठीक है. अच्छा देखो, जैसे for example, अब सीधे questions पे आ जाते हैं हम. We'll directly solve lots of numericals on this particular thing कि F net external equal to mass into acceleration. पूरा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है वो इसी बात से चलता है अपना कि F external equal to mass into acceleration. We'll start with very easy examples. Say for example this is 2 kg.
and I tell you I apply a force of 10 Newton, what will be the acceleration? Quickly tell me. आपको पता है, मेरे को पता है कि आपको पता है, बट विल स्टिल गो स्लो ताकि अपने को पूरा अच्छे से क्लैरिटी रहे। इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा आपको बताना है। थर्ड, आई एम ड्राइंग सम वेरी वेरी सिंपल फिगर्स। दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 5 kg। एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा इस केस में? इसका मास 2 kg एंड दिस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कितना होगा बताओ? और ये भी एक छोटा सा एग्जांपल, ये मास आपको दे दिया है 10 kg एंड दिस इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फोर्स इधर लग रहा है ऑलरेडी 20 न्यूटन, यहाँ पे एक लग रहा है F, तो आपको बोला फाइंड F। 20 नहीं, इसको आप 10 न्यूटन ले लो, ठीक है, 20 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ F। सो दीज आर सम 5 क्वेश्चंस, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बेस्ड है इस पे। आप देख के एक बार स्क्रीन पॉज करके फटाक से ट्राई टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इस केस में क्या होगा देखो, F इक्वल्स टू ma, राइट? F equals to ma. Now force is 10, mass is 2. What is acceleration? 5 meter per second square, right? यहाँ पे कितना हो जाएगा? What is the net force? 20 minus 10. 20 minus 10, that is 10. 10 by 2 is acceleration. Again 5 meter per second square. समझ में आ रहा ना? तो F net का मतलब क्लियर है आप लोग को क्या होता है? F net का क्या मतलब होता है? Resultant force. F net का क्या मतलब होता है? Resultant force. So F net equals to mass into acceleration. तो एक चीज तो क्लियर हो गया, नेट का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, बताऊंगा आगे चल के। So ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वो ma के बराबर होगा, मतलब जो टोटल समेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मोर प्रॉपर्ली यू कैन राइट इट लाइक दिस इन वेक्टर फॉर्म, F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? अब इसी को एक चीज और देख लो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, F net एक्सटर्नल मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अलोंग x इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x, अलोंग y क्या हो जाएगा? अलोंग y, ऐसा करके। ये कुछ रटने का नहीं है, बिल्कुल जैसा आपको बताया था कि एक कंपोनेंट को दूसरे वाले से मतलब ही नहीं रहता। तो फोर्स अलोंग x विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x। ये सारे के सारे नेट फोर्सेस हैं। नेट फोर्स अलोंग x, net force along x should be equal to mass into acceleration along x. Net forces along y should be equal to mass into acceleration along y. ऐसा करके समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स का वही कॉन्सेप्ट था। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, पर मैं आऊंगा अच्छे प्रॉब्लम्स पे भी, अभी आराम से समझ लो एक बार, धीरे धीरे करके फिर बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना? 40, नेट फोर्स 40 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा 8। यहाँ पे क्या लिख देंगे? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट 20 न्यूटन। ये वाले केस में आपको फोर्स बताना है कितना होगा, ठीक है? एक्सेलरेशन देखो इस तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको एक्सेलरेशन ऐसे नहीं देता, सपोज ऐसे दे देता 2 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? 2 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको फोर्स दे देता, ठीक है, 20 न्यूटन डायरेक्शन वाइज ही दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे देखो, एक्सेलरेशन किस तरफ है, ध्यान से देखो कैसे करके लिखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। एक्सेलरेशन इज इन दैट साइड, मतलब नेट फोर्स किस तरफ होगा? उस तरफ। नेट फोर्स किस तरफ होगा? उस तरफ। अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, विच एवर डायरेक्शन द बॉडी मूव्स इन, whichever direction the body moves in will take that direction to be पॉजिटिव एक्सिस। वो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा ना बॉडी, उस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मान लेना है। मतलब कल को अगर एक बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे? कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे? इसको। और इक्वेशंस अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि नीचे वाले सारे फोर्सेस को पॉजिटिव मानेंगे और ऊपर वाले सारे फोर्सेस को नेगेटिव मानेंगे। अच्छे से सेट कर लो दिमाग में, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो। क्या सेट करना है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन को अपने को पॉजिटिव ट्रीट कर लेना है। अभी तक जो +x और +y पढ़े उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यों? फॉर आवर कन्वीनियंस।
हमारे कन्वीनियंस के लिए और कोई रीजन नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ही सकते हैं, पर फॉर आवर कन्वीनियंस वी ऑलवेज टेक दैट डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव इन विच द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स। वैसा करने से बहुत आसानी होता है और उसका ऑपोजिट वाला ऑटोमेटिकली सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है उसको मैंने पॉजिटिव पकड़ लिया, तो उस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं सबको पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। साइन कन्वेंशन ऐसे डिफाइन करेंगे हम एनएलएम में। तो जब आपका ये साइन कन्वेंशन डिफाइन हो गया, इसका मतलब सारे के सारे फोर्सेस पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल गए, तो उस डायरेक्शन में जिसे मूव कर रहा है बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लेना है, मतलब सारे फोर्सेस उस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गए, उसका अपोजिट सारे फोर्स नेगेटिव हो जाएंगे। फिर अपना इक्वेशन लिखेंगे और बता देंगे सॉल्व करके। तो यहाँ एक्सेलरेशन 2i क्या, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे f, ये प्लस लेंगे, और F1 को क्या लेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि इस तरफ है। F माइनस 20 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना 20, तो F कितना आ गया मेरा 40i क्या बोल सकते हैं आप, ऐसे करके करना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, मैं बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था कि प्लस डायरेक्शन किसको लेते हैं, इतना आई होप आपको ढंग से क्लियर हो गया है। मेन चीज क्या था, एक ये समझाना, नेट फोर्स समझाना कि क्या होता है। नेट फोर्स हम हमेशा लेते हैं, ध्यान रखो, ये एक्सेलरेशन एक फोर्स के चलते नहीं है, इसके चलते नहीं है, ये नेट फोर्सेस के चलते हैं जो एक्सेलरेशन मिलता है हमको बॉडी का, है ना। दूसरा चीज जो समझाना था मेरे को वो ये कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चलेगा उस डायरेक्शन को हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, उसके ऑपोजिट वाले सारे फोर्सेस को नेगेटिव ट्रीट कर लेते हैं। चलो और देखते हैं प्रॉब्लम्स, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही करेंगे आज की क्लास में, ध्यान से देख। अब अभी तक जितने हमने प्रॉब्लम्स पढ़ा था उसमें बॉडी रेस्ट पे था या इक्विलिब्रियम में था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, पर अभी बॉडी एक्सेलरेट करेगा, तो ध्यान रखना इसीलिए फॉर्मूला का यूज करना है, F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपने को, है ना। सपोज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ F इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ऐसे करके F इक्वल्स टू 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, इसका मास है 10 kg। आपको बोला फाइंड नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। आप बोला ट्राई करो खुद से, एक बार वाला खुद से ट्राई करो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो। इस बार सपोज दो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल भी ले लो 37 डिग्री, ये फिर से ले लो आप 10 kg। इस केस में भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो फटाक से वो दो क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर बोर्ड की तरफ देखो, मैं बताता हूँ आपको। फटाक से सॉल्व करो और फिर बोर्ड की तरफ देखो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ पे ऐसे करके 10 kg बना दिया है ना। और फोर्स कैसे करके लगा रहे हैं, ऐसे करके कितना लगा रहे हैं हम लोग, 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। आप लॉजिकली बोलो बॉडी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, राइट। बॉडी जब इधर जाएगा तो कौन से डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ट्रीट कर लेंगे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर लेंगे। और हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्सेस लग रहा है, हम तो रिजॉल्व करते हैं ना फोर्सेस हमेशा। अगर हमको बोलना रहा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, हम जनरली रिजॉल्व करके बोलते हैं, एक्स के लॉन्ग इतना होगा सर, वाई के लॉन्ग इतना होगा सर, आपको अलग अलग तोड़ के बोलना है। इन जनरल आपको कभी वेक्टर नहीं पूछता, वेक्टर अगर पूछ भी दिया, अगर वेक्टर पूछ दिया आपसे, तो सपोज आपको मैं बाद में बताता हूँ वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे उसको, पर अभी आपको क्या बोला है, एक्सेलरेशन निकालने। तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्स के लॉन्ग जो फोर्स है वो क्या है, एक्स के लॉन्ग जो फोर्स है वो क्या है, 20 का एक्स कॉम्पोनेंट, 20 का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, 20 cos 37 दैट इज 16 न्यूटन एक्स कॉम्पोनेंट है, ठीक है। और दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, सिंपल। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप y के लॉन्ग, आप x के लॉन्ग फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना सकते हैं, उसको अलग ट्रीट कर सकते हैं, y के लॉन्ग जो फोर्सेस लगेंगे उसको अलग ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए देखो x के मतलब यही एक फोर्स बनाया हूं फिलहाल, क्योंकि बाकी जो फोर्सेस हैं वो वर्टिकली हैं, प्योर है ना। वर्टिकली प्योर मतलब एक तो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, दूसरा ये नॉर्मल लगाएगा, एक इसका कंपोनेंट भी वर्टिकल ऊपर लगेगा, वो कितना लगेगा, 20 sin 37, 20 sin 37 कितना है ये, 12 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, इसका एक कंपोनेंट और नॉर्मल। अच्छा, इसका मतलब ये बॉडी जो है इतने फोर्स से उठेगा नहीं जमीन से, क्योंकि वेट काफी ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस, तो बॉडी उठ नहीं जाएगा, पर नॉर्मल कितना हो जाएगा, क्या इक्वेशन लिखेंगे, n + 12 = 100, है ना। ऊपर का फोर्सेस नीचे के फोर्सेस बैलेंस रहेंगे ना, तो n कितना हो जाएगा, 88 न्यूटन।
एंड नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा 88 न्यूटन। ये चीज क्लियर है ना सबको? मतलब आप इमेजिन करो ये कैसा कंडीशन हो गया, ये ऐसा कंडीशन है कि 10 केजी का एक खिलौना है, 10 केजी का एक खिलौना है, आप उसको यहाँ से ऐसे करके एक स्ट्रिंग से खींच रहे हैं, आप उसको ऐसे करके स्ट्रिंग पकड़ के खींच रहे हैं उस तरफ, तो ये जमीन से तो नहीं उठ जाता ना? ये जमीन से उठ जाता है क्या? उठ सकता है, अगर आपका फोर्स सफिशिएंट है तो उठ सकता है, नहीं भी उठ सकता है। इस कंडीशन में जो ऊपर नॉर्मल जो वर्टिकल फोर्स जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है 12 न्यूटन, जो इसके वेट से कम है। जो 12 न्यूटन ऊपर इसका कंपोनेंट आया वो इसके वेट से कम है, तो जाहिर सा बात है ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन था, चलो क्योंकि मेरे को एक और आइडिया आया, ये सपोज ये क्वेश्चन आपको दे देता, ये मैं ए लिखा, पार्ट बी इस क्वेश्चन का, अगर आपको बोलता फाइंड एफ मिनिमम, ये एफ है, ये वाला प्रॉब्लम का दे रहा हूं, फाइंड एफ मिनिमम टू लिफ्ट द ट्रॉली, फाइंड मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट द ट्रॉली, क्या आंसर क्या होगा बताओ? अगर लिफ्ट हो जाएगा ये जस्ट, तो इसका ये कांटेक्ट छूट जाएगा, मतलब नॉर्मल नहीं रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, क्या बचेगा? मतलब बेसिकली कॉमन सेंस है, उठाने के लिए इसको एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर फोर्स देना पड़ेगा, नॉर्मल तो 0 हो जाएगा ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा देखो, 100 न्यूटन नीचे, और ये मैं कहां से, यहाँ सपोज ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ना, फोर्स ऐसे करके लगा रहे हैं, ये एक फोर्स हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये mg, यही 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब चूंकि बोला है टू लिफ्ट द ट्रॉली, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो ट्रॉली को जमीन से उठाना है, तो मेरे को किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस से। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हेल्प नहीं करेगा ना ट्रॉली को ऊपर उठाने में, ऊपर उठाने में जो फोर्सेस हेल्प करेंगे उसी पे हम फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऊपर उठाने में कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ का ये कॉम्पोनेंट, तो हम लिखेंगे एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल्स टू mg, राइट। अब जब जस्ट फाइंड एफ मिनिमम टू लिफ्ट द ट्रॉली, जब लिफ्ट हो जाएगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा, तो नॉर्मल 0 हो जाना चाहिए। लिफ्ट जस्ट जब मतलब वो ट्रॉली का जब कांटेक्ट ग्राउंड से जस्ट छूटने वाला रहेगा तो उस समय क्या हो जाएगा? नॉर्मल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये थीटा का एंगल कुछ दिया होना चाहिए, दिया हुआ है, गिवन है थीटा, तो आपका एफ का वैल्यू कितना आ गया? कितना मिनिमम फोर्स चाहिए? 100 बाई साइन थीटा, इतना मिनिमम फोर्स आपको देना पड़ेगा, थीटा गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट कितना एंगल मतलब कितना मिनिमम फोर्स चाहिए? 100 बाई साइन थीटा, इसको उठाने के लिए। दिस ऐसा भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत आना अगर टफ लग रहा हो तो, ऐसा नहीं है, अब इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। ऐसा करके यहाँ पर देखो, इस केस में भी बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया मेरा? एक्सेलरेशन निकाला गया, हाँ इतना ही आया, क्योंकि देखो वर्टिकल कह रहा हूँ, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो वर्टिकली रेस्ट पे है, मतलब हाँ वर्टिकली बोल सकते हैं, रेस्ट पे है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, हॉराइजॉन्टल इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बॉडी हॉराइजॉन्टल इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो भी कंपोनेंट वाइज हम ले सकते हैं। अगर मेरा fx 0 है तो हॉराइजॉन्टल इक्विलिब्रियम होगा, अगर fy 0 है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम रहेगा, ऐसा करके। समझ में आ रहा है आपको? जहां जहां पे 0 आएगा उस एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम रहेगा। और अगर मैं कह देता हूं कि मेरा नेट फोर्स ही 0 है, उसका मतलब तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग इंडिविजुअली 0 है, बताया था लास्ट क्लास में, उस केस में तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम, मतलब सारे के सारे एक्सिस के अलॉन्ग ही वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक सिंपल सा बात, पर ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि बॉडी एक्स के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है तो वाई के अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम में रहे, इस बात का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखो फटाक से ये वाला क्वेश्चन, इस केस में क्या करना था मेरे को? फिर से एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकालना है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन, ये एंगल आपका 37 डिग्री, यहाँ से ऐसे करके लगा रहे हैं 20 न्यूटन, और ये एंगल भी 37 डिग्री, और ये 10 kg। हॉराइजॉन्टल जो नेट फोर्स है वो कितना है? चलो सारा फोर्सेस लिख देता हूँ, 100 न्यूटन और ऊपर की तरफ लग रहा है n, ये सारा फोर्सेस मैंने ड्रॉ कर दिया। हॉराइजॉन्टल अगर सारे फोर्सेस को लिखें तो क्या लिखेंगे? 20 cos 37, ऐसा लिख सकते हैं, 20 cos 37 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कंफ्यूज नहीं है ना कि सर इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, फिर ये 37 ये 37 फिर 20 cos 37 रिजॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं, अब डायरेक्ट 20 cos 37 कर सकते हैं, 10 cos 37 कर सकते हैं। तो 20 cos 37 प्लस
10 cos 37 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कितना आ गया देखो तो, 16 + 8 24, 24/10 एक्सेलरेशन आएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है ऊपर उठेगा नहीं है, क्योंकि देखो 20 न्यूटन मार रहे हैं इधर, 10 न्यूटन इधर मार रहे हैं, और 100 kg तो वेट है, दिख ही रहा है नहीं उठेगा, काफी ज्यादा वेट है। पर वो हम, दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मल, ये तो पहला पार्ट था ए। नॉर्मल हमको दिख रहा है क्वेश्चन में वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। मतलब नीचे जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या लग रहे हैं देखो, 100, 20 sin 37, 20 sin 37, और नीचे कोई फोर्स लग रहा है क्या? और नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऊपर क्या क्या लग रहा है, -n, मैं n लिख रहा हूं फिलहाल, -10 sin 37, -10 sin 37 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट? ऐसे करके लिख सकते हैं। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 5 4 सा 5 2 सा, देखो ये क्या आ गया 12 - 6, ये क्या आ गया 12 - 6, मतलब 106 -n इक्वल्स टू ये मास इनटू एक्सेलरेशन। अब साफ साफ दिख रहा है कि वर्टिकली तो उठने वाला नहीं है, वो दिख रहा है अपने को कॉमन सेंस, देखिए नीचे काफी ज्यादा फोर्स लग रहा है। नॉर्मल एक एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इस केस में, वही निकालना है। तो 106 - n इक्वल्स टू 0, ये उठेगा नहीं, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो 106 - n इक्वल्स टू 0, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 106। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो बस हेल्प करेगा जमीन, मतलब इट विल एडजस्ट इटसेल्फ। मैं यही बोल सकता हूँ, कह रहे इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूँ नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा, देखो ध्यान से, नॉर्मल का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देख फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ऐसे करके 2 kg रखा हुआ है, और ऊपर से मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो नॉर्मल कितना होगा बताओ? आराम से देखो, अगर ये समझ में आएगा आपको। अब ध्यान से उधर देखो एक बार, ये अगर समझ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा ढंग से मैंने ऐसा क्यों किया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है, पर यहाँ देख लो एक बार। इस केस में नॉर्मल कितना आएगा आपका खुद बोलो। देखो नीचे 20 लग रहा है, 10 और लगा रहे हैं, तो नॉर्मल कितना 30। अगर सिर्फ 2 kg रख देते तो नॉर्मल कितना होता 20। अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होते 10 न्यूटन, तो नॉर्मल कितना हो जाता? ये वाले केस में नॉर्मल कितना होता बताओ? ये वाले केस में नॉर्मल कितना होगा? ऊपर ऑलरेडी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, नीचे 20 है, तो नॉर्मल सिर्फ 10 ही लगेगा रे। समझ रहे हैं तुम लोग? नीचे की तरफ 20 है, ऊपर नॉर्मल है, और ऊपर ये 10 भी है। नॉर्मल को ऐसे बनाते नहीं है हम लोग, वर्टिकल नॉर्मल बनाना मत, पहले देख लो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ रहा है। नीचे की तरफ नेट फोर्स 10, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ 10 ऐसे, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ 10 ऐसे, ठीक है ना। अगर ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा आ जाते तो नॉर्मल 0, सिंपल सिंपल। नॉर्मल पहले ड्रॉ ही मत करना आप, ये सारे केसेस में ना नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना। अब देख लेना कि नॉर्मल को छोड़ के ऊपर वाले फोर्सेस कितने हैं और नीचे वाले फोर्सेस कितने हैं। अगर नीचे वाला फोर्सेस ज्यादा है, अगर नीचे वाला फोर्सेस ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है नॉर्मल को लगना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन में तो घुस नहीं जाएगा ना, नीचे का फोर्स ज्यादा है, इसमें थोड़ी जमीन घुस गया ऐसे करके, नहीं, यहीं पे फिक्स रहेगा। नीचे का फोर्सेस ज्यादा है, उसको काउंटर करने के लिए नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो इस केस में नॉर्मल कितना आएगा 10 न्यूटन। आप बाय डिफॉल्ट से नॉर्मल ड्रॉ मत करना। तो मान लो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 15 न्यूटन, इस केस में बताओ नॉर्मल कितना होगा? अब मैं लगा रहा हूँ 18 न्यूटन, ये केस में नॉर्मल कितना होगा? अब मैं ऊपर लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, ये केस में नॉर्मल कितना होगा? और एक और, ये वाले केस में नॉर्मल कितना होगा? सपोज मैं लगा दिया 30 न्यूटन, तो इस केस में नॉर्मल कितना होगा? सारे के सारे 2 kg के ब्लॉक, सेम ब्लॉक है हमेशा। चलो ये वाले केस में नॉर्मल कितना होगा बताओ? देखो ऊपर की तरफ लग रहा है 18 न्यूटन, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, नीचे का ज्यादा है कि नहीं? हाँ, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन क्यों? क्योंकि नीचे लग रहा है 20, ऊपर लग रहा है 18, तो इसको भी 20 करना पड़ेगा ना, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो ऊपर लग जाएगा 2 न्यूटन। क्लियर है? इस केस में देख, नीचे वेट लग रहा है 20 न्यूटन। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, ये मतलब दबा रहा हूँ या खींच रहा हूँ स्ट्रिंग से, इस टाइप से, तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, मैं दे रहा हूँ आपको ये चीज।
These external forces are being applied on 2 kg. आप कंफ्यूज मत होना, ये मैं लगा रहा हूँ, मतलब मान लो स्ट्रिंग पकड़ के खींच रहा हूँ 2 kg को ऊपर की तरफ विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. दिस इज द सिनारियो. और इसका वेट है 2 kg, तो नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा 20 न्यूटन, राइट? ओके, नेट फोर्स कितना आ गया? 0. तो नॉर्मल लगेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा नॉर्मल, सेल्फ एडजस्टिंग, तो लगेगा ही नहीं. क्यों लगेगा? आप इमेजिन करो, सपोज मेरा वेट है 50 kg, मान लो मेरा वेट है 55 kg, मान लो मेरा वेट है 55 kg, 55 kg मेरा मास है, मेरा वेट कितना हो जाएगा? 550 न्यूटन, 550 न्यूटन. अब मान लो मेरे पे रस्सी बांध के कोई ऊपर से खींचे एग्जैक्टली 550 न्यूटन, समझ रहे हैं? मेरा वेट कितना है? 550 न्यूटन. देखो यहां पे मैं खड़ा हूं ऐसे करके, ठीक है, मेरा वेट है कितना? 550 न्यूटन. मैं बोल रहा हूं गर्दन पे रस्सी बांध के ऐसे करके ऊपर खींच रहा है कोई, एग्जैक्टली अगर 550 न्यूटन से मेरे को खींचे, तब क्या मेरा पैर इधर से कांटेक्ट जस्ट छोड़ने वाला रहेगा? यस. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मेरा वेट है 550 न्यूटन, सपोज गला में रस्सी बांध के ऊपर से कोई खींच रहा है, एग्जैक्टली 550 न्यूटन फोर्स अगर लगा दे, तब मेरा पैर जस्ट कांटेक्ट छोड़ेगा. नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0, जस्ट 0 होगा. ऑफ कोर्स 600 न्यूटन लगा दे तो मैं तो ऊपर ही उठ जाऊंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. पर हाँ, ऊपर उठ गया तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0. कॉन्टेक्ट ही नहीं तो नॉर्मल कहेगा. क्लियर है ना? ऊपर ही उठ गया तो नॉर्मल कहेगा. सो देयरफॉर मिनिमम फोर्स कितना चाहिए टू मेक नॉर्मल 0? 550 न्यूटन, जितना उसका वेट है. ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल, आप खुद से आंख बंद करके सोचना कि नॉर्मल कितना हो सकता है. अगर नीचे के फोर्सेस ज्यादा रहेंगे तब नॉर्मल एक्ट करेगा ऊपर की तरफ. ऊपर का फोर्सेस ज्यादा या इक्वल टू है तो नॉर्मल 0. नॉर्मल इज एडजस्टिंग लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल 0, क्योंकि 20 न्यूटन है ना ऑलरेडी वेट. 20 न्यूटन से खींचेंगे तो नॉर्मल तो लगेगा ही नहीं, जस्ट कॉन्टैक्ट छोड़ेगा सरफेस से, जस्ट. इस केस में 30 न्यूटन लगा दिए, ऑफ कोर्स उठ ही जाएगा ऊपर, ऊपर की तरफ उठ ही जाएगा. नीचे की तरफ वेट लग रहा है 20, ऊपर की तरफ लग रहा है 30. नेट फोर्स आ गया ऊपर की तरफ 10, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ध्यान से देखो, ये खुद में क्वेश्चन है. 2 kg है ना, ऊपर लगा रहा हूँ 30, नीचे वेट लग रहा है 20, नेट फोर्स आ गया ऊपर 10, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग वाई आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बेसिकली आप ये एग्जांपल से मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, दैट नॉर्मल एडजस्ट कर सकता है खुद को एज पर द सिचुएशन. वो पॉजिटिव होता है, 0 हो गया मतलब बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ दिया. कभी नेगेटिव आ गया अगर नॉर्मल, जैसा कल एक क्वेश्चन कराया था उसमें नॉर्मल नेगेटिव आ गया. याद, एक आदमी से पकड़ के रस्सी पकड़ा हुआ था, वो एक ट्रायंगुलर केबिन में था, उसके नॉर्मल जब सॉल्व किया तो नेगेटिव आ गया था. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है वो पर्सन कॉन्टैक्ट छोड़ देगा ग्राउंड से, इसका ये मतलब है. तो अब सॉल्व करते हैं नॉर्मल, अगर नेगेटिव आ गया उसका मतलब बॉडी हैज लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर. दिस इज मीनिंग. सिमिलरली हेयर, मैं आपको फिर से इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप देखो ध्यान से फिर से एक बार. लेट्स डू इट वंस अगेन, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. मैं स्लोली बढ़ूंगा ये सारी चीजों में. हो सकता है आपको बोरिंग लगे, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि मेरे को पता है अगर ये चैप्टर ढंग से समझ गए तो बहुत बड़ा सक्सेस है. वाई? चैप्टर इजी है बट इट हैज सो ग्रेट रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन फ्यूचर, एंड मैं बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे. सो देयरफॉर बिल्कुल हड़बड़ाओ नहीं, मैं चाहता हूँ वो सारा क्वेश्चन आप खुद से करें. सो देयरफॉर इन द इनिशियली विल गो लिटिल स्लो, केयरफुली. देखो ध्यान से, इसके से मेरे को बताओ नॉर्मल कैसे निकालेंगे आप. तो नॉर्मल मैंने अभी जस्ट क्या कहा आपको, तो मेरे को दिख रहा है, पर आप क्या करो, आप खुद नॉर्मल के बिना इमेजिन करो, कि नीचे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं. नेट फोर्स का हम बात करते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, देखिए 10 kg, नीचे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है देखो. इसका एक कंपोनेंट 20 sin 37, 20 cos 37, ये 20 sin 37. 20 sin 37 मतलब 20 इंटू 3/5, ये कितना आ गया? 12. तो 12 नीचे की तरफ लग रहा है ये इसका. और नीचे कौन सा लग रहा है? देखो ये 100, इसका खुद का वेट कितना लग रहा है? 100. अच्छा, ऊपर की तरफ ये लग रहा है 10 sin 37, 10 sin 37 बोले तो 6. अच्छा, और कोई वर्टिकल फोर्सेस दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन में? और कोई वर्टिकल फोर्सेस दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं. इसका मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया, इसका मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया, ये ले लिया. एक नॉर्मल है, नॉर्मल 0 लगेगा या कितना लगेगा वो चेक कर रहे हैं अभी हम. चेक करने के लिए देख रहे हैं कि नॉर्मल को छोड़ के बाकी सारे फोर्स है क्या कंडीशन. तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है? 112. 12 + 100, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है?
112, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है 6, इसका मतलब नॉर्मल को ऊपर लगना पड़ेगा वरना जमीन में घुस जाएगा ये। क्लियर है ना? मतलब मान लो मेरा वेट है 112 और ऊपर लग रहा है सिर्फ 6 न्यूटन खींचने के लिए मेरे को ऊपर, जाहिर सी बात है नॉर्मल तो लगेगा मेरे पे। कितना लगेगा? 112 माइनस 6, 106 न्यूटन। ये समझाने के लिए किया था सिर्फ। तो आपको क्वेश्चन देके फीलिंग आ जाना चाहिए कि नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉर्मल किधर बनाऊं कि नहीं बनाऊं। देखो बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स है, ऊपर की तरफ कम फोर्स है, तो जाहिर सी बात है वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा और ऊपर नॉर्मल लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो आप लिखेंगे इक्वेशन तो क्या लिखेंगे? 112 इक्वल्स टू ऊपर की तरफ 6 प्लस n, दिस इंप्लाइज आपका n आएगा 106। ऐसा मैं आपको इसी में एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं कब नॉर्मल का वैल्यू 0 हो जाएगा। जस्ट सेम एग्जांपल, मैं डेटा दूसरा लेके दिखा रहा हूं ताकि वो क्लैरिटी है। देखो फॉर एग्जांपल आप खुद समझेंगे। देखो मान लो इसका वेट फिर से 10 kg है, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। यहां से मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। आपको मैं बोला फाइंड एक्सेलरेशन ए, दूसरा क्वेश्चन बोला फाइंड द नॉर्मल, फाइंड द नॉर्मल, ठीक है, फाइंड द नॉर्मल। आप क्या करेंगे? देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहले तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चेक करूंगा कितना है। अलग अलग कर सकते हैं हम, वर्टिकल एक्सेलरेशन अलग निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अलग से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से फोर्सेस, तो हम अलग अलग दोनों को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? एफ एक्स देखते हैं, सिग्मा एफ एक्स, एक्स के अलॉन्ग सारा जो रिजल्ट, मतलब एक्स के अलॉन्ग क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। देखो क्या क्या लग रहा है बताओ? 20 cos 37, 20 cos 37। अच्छा बॉडी इधर मूव करेगा तो लॉजिकली दिख रहा है मेरे को, इधर फोर्स लगा रहे हैं इसको खींच रहे हैं, बॉडी इधर ही मूव करेगा, वो तो साफ साफ दिख जा रहा है मेरे को। तो इसलिए मैं डायरेक्शन क्या मानता हूँ? पॉजिटिव। ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ। इस डायरेक्शन के अलॉन्ग सारे फोर्सेस को मैं प्लस ले लूंगा, ठीक है। 20 cos 37 प्लस 20 cos 53, ये हो गया नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स, सिंपल। तो ये कितना आ गया आपका? 16 प्लस 12 कितना होता है? 28 इक्वल्स टू 10 AX। इसका मतलब AX आपका आ गया 2.8 मीटर पर सेकेंड। पहला चीज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स तो साफ साफ आ गया। अब मेरे को नॉर्मल निकालना है, तो मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि आप क्या करो, नॉर्मल छोड़ के बाकी सारा फोर्सेस ड्रॉ कर लो और चेक करो। ये एक तरीका है। इससे भी एक अच्छा तरीका है जो कि कुछ करना ही नहीं है उसमें। उसमें आपको क्या करना है? देखो आप चुपचाप इमेजिन कर लो नॉर्मल ऊपर है, आप अभी से लेके सारे क्वेश्चंस में ये करेंगे। ये तो बस समझाने के लिए था, आपको फीलिंग आना चाहिए था आपको क्वेश्चन देख के, जस्ट टू गेट अ प्रॉपर फील दैट वेदर नॉर्मल विल एक्ट और नॉट। उसके लिए पूरा कहानी बताया आपको, और अभी मैं बता रहा हूँ मेथड कैसे निकालना है आपको। जब क्वेश्चन आएगा, जब रियल लाइफ में व्हेन यू विल गेट क्वेश्चंस, व्हाट यू विल डू, यू इमेजिन दैट नॉर्मल ऐसे करके लग रहा है जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए थे, याद है वो जो आदमी पकड़ा हुआ था केबिन में। नॉर्मल हम मान के सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव आ गया, जीरो आ गया, उसका मतलब कॉन्टैक्ट छोड़ चुका है वो, सिंपल सिंपल, ठीक है। नॉर्मल निकालना है, मैं तो इमेजिन कर लेता हूँ नॉर्मल ऊपर लग रहा है, आप निकालो कितना आएगा नॉर्मल। क्योंकि वर्टिकली मैं मानता हूँ जनरली बॉडी बैलेंस्ड रहता है। मैं क्या मानता हूँ? फर्स्ट आई अज्यूम, स्टेप 1 है अज्यूम वर्टिकल इक्विलिब्रियम, और फिर नॉर्मल निकालो आप आराम से, ठीक है। जब नॉर्मल निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो नीचे के फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ऊपर के फोर्सेस, इसका मतलब सिग्मा एफ वाई क्या होगा? 0। तो मतलब नीचे कितने फोर्सेस लग रहे हैं देखो तो 20 sin 37 प्लस उसका वेट 100, 20 sin 37 प्लस इसका वेट 100, और नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा, राइट। दिस शुड बी इक्वल टू ऊपर लग रहा है नॉर्मल प्लस 20 200 sin 53। यहाँ क्या लिया था? 20 ले लिया था क्या? ओहो हो, यहाँ भी 20 ले लिया था, 20 cos 37 और यहाँ भी 20 cos 53। अच्छा इसको 200 कर लो तो ये 40, तो ये आ गया 120, है ना। 120 प्लस 16 136, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 13.6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 200 n प्लस 200 sin 53, मतलब 4/5, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? 112
इक्वल्स टू n प्लस 160, इसका मतलब नॉर्मल क्या आ गया, नेगेटिव। जितना भी आया नॉर्मल क्या आ गया, नेगेटिव। बेसिकली कितना आया है, माइनस 48, माइनस 48 न्यूटन आ गया नॉर्मल। नॉर्मल आ गया माइनस 48 न्यूटन। नॉर्मल नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये फोर्स इतना स्ट्रांग है कि इसको उठा दे रहा है ऊपर। इसको क्या कर ले रहा है, ऊपर उठा ले रहा है। इसका मतलब नॉर्मल जीरो। माइनस 48 मत लिख देना ऑप्शन में। सपोज एबीसीडी ऑप्शन दिया रहे, सपोज ऐसे करके ऑप्शन दिया भी रहे, अगर आपको दिख रहा हो अपना आंख से, सर दे तो दिया माइनस 48, सपोज ये सारा कंडीशन है, नन ऑफ दीज, तो जीरो ही मारना, माइनस 48 न्यूटन मत मार देना। नॉर्मल नेगेटिव हो ही नहीं सकता। माइनस 48 आ रहा है, उसका मतलब है नॉर्मल जीरो हो गया, मतलब बॉडी कांटेक्ट छोड़ दिया है। तो ऑप्शन में अगर दिखे माइनस 48 तो भी मार मत देना। सॉल्व करने पे तो सर माइनस 48 आया मार देंगे, नहीं, जीरो होगा उसका मतलब। अच्छा, अब अगर नॉर्मल नेगेटिव हो गया, इसका मतलब बॉडी ने कांटेक्ट छोड़ दिया, राइट। इसका मतलब ये कंडीशन गलत है। इसका मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये बॉडी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब उस बॉडी पे एक नेट फोर्स है ऊपर की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है वो अधूरा है। मैंने पूरा एक्सेलरेशन नहीं निकाला, सिर्फ एक्स के लॉन्ग निकाला। अब वाई के लॉन्ग में निकालना पड़ेगा। एक्स के लॉन्ग कितना आ गया, 13.6 आई कैप, और अब वाई के लॉन्ग में निकालना पड़ेगा। देखो फटाक से कैसे, वाई के लॉन्ग अगर निकालना पड़ेगा, नॉर्मल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब बॉडी किधर चल रहा है, बॉडी किधर चल रहा है, ऊपर के नीचे। ऑफ कोर्स ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल नेगेटिव आ गया, मतलब नॉर्मल नेगेटिव मतलब बॉडी ने कांटेक्ट छोड़ दिया है। तो अब ऊपर के फोर्स से बॉडी ऊपर मूव कर रहा है ना, तो ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। ये साइन कन्वेंशन फिक्स हो गया, ध्यान से समझना। बॉडी ऊपर मूव कर रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन को हम क्या मान लें, पॉजिटिव। और अब इक्वेशन लिखेंगे, देखो ध्यान से, ऊपर के सारे फोर्सेस को पॉजिटिव मानेंगे, मतलब एन। अच्छा नॉर्मल, अच्छा बॉडी ने तो कांटेक्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल तो जीरो हो गया। बॉडी ने तो कांटेक्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल कितना हो गया, जीरो। तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या आएगा, 200 साइन 53। ऊपर की तरफ और कोई फोर्स है क्या, नॉर्मल मत ले लेना, नॉर्मल छोड़ चुका है ऑलरेडी बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडी हैज लॉस्ट द कांटेक्ट, नॉर्मल को अकाउंट में नहीं लेना अब। तो 200 साइन 53 और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, माइनस इसका वेट माइनस 20 साइन 37। दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई। आई होप क्लियर है आपको। आप इतना ए वाई एक्स मत लिखना, चुपचाप ए लिख लेना, समझ में आ ही रहा है कि वाई के अलोंग है, ठीक है। सो 5 इंटू 40 आपका 160 माइनस 100 माइनस 12 इक्वल्स टू 10a। इसका मतलब 60 माइनस 12, 48/10, 4.8, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना आंसर आ गया। मतलब अगर एक्सेलरेशन पूछे तो क्या बोलेंगे, ये एक्सेलरेशन ये बोल देंगे, ठीक है। 13.6 आई कैप प्लस 4.8 जे कैप। अब एक्सेलरेशन लिखते टाइम बॉडी किधर मूव कर रहा है अपने को पता पड़ा ना, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन सही से आई कैप जे कैप लिखना। बॉडी इधर चल रहा है दिख रहा है मेरे को, और बॉडी ऊपर जा रहा है तो प्लस जे कैप, ठीक है। ऐसे करके क्लियर होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे आप क्लास में, ऐसा वैसे मैं प्रॉब्लम्स करा दूंगा आपको और बहुत सारा, ठीक है। अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेने दो बस एक बार। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये ढंग से क्लियर है ना। मैं आपको और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी तक हम लोग डायरेक्ट फोर्सेस निकाल पा रहे थे, अभी थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन देता हूँ। आई डोंट नो कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, पर मैं 1 ही लिख देता हूँ। चलो देखो, अब मान लो ये एक लिफ्ट है, ये क्या है, एक लिफ्ट है, और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 kg का ब्लॉक है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड द नॉर्मल फोर्स। ये पार्ट ए। पार्ट बी फटाक से निकालते रहो आप लोग, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 kg, इसके ऊपर 1 kg, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा, फटाक से ट्राई करते रहो देख के आप लोग। ठीक है, ट्राई करो फटाक से। अच्छा इस केस में ऊपर जा रहा है फिर से, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ये सब क्लास में कर लेंगे हम लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स। अभी फिलहाल सिंपल ही सिंपल एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए। सी वाला एक पार्ट दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा करके है 10 kg
और इस बार ये नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल ले लो, ऐसे करके है, ये अपना 5 kg है, नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो ये सारे केसेस में आपको बताना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ठीक है। ये सारा यू आर सपोज टू टेल। चलो स्टार्ट करें, एक बार सॉल्व कर लो फटाक से, फिर देखना बोर्ड की तरफ। चलो देखो, सिंपल सा, इसमें तो अपने को कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। इसका आप चुपचाप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देना। पहले बताओ बॉडी किधर मूव कर रहा है, ऊपर की नीचे? बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की नीचे। सबसे पहला स्टेप ये है, बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की नीचे। बॉडी जा रहा है ऊपर, कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव मानना है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। इधर देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं, बॉडी ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव। ऊपर के सारे फोर्सेस को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। इस 2 kg का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, देख नीचे की तरफ लग रहा है वेट, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। और इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, n-20। क्यों, ऊपर के फोर्स पॉजिटिव हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है, तो n-20 ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। 20 - n मत लिखना, साइन कन्वेंशन ढंग से समझ लो। बॉडी ऊपर जा रहा है कि नहीं, लिफ्ट जा रहा है, तो बॉडी को चिपका हुआ है ना उससे, वो भी ऊपर ही जाएगा। क्लियर। ऊपर वाले फोर्स कौन से है, नॉर्मल, ये 2 फोर्स लग रहा है उस पर, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो n-20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा इस डब्बा का, डब्बा का एक्सेलरेशन कितना होगा, जो लिफ्ट का है वही तो होगा, लिफ्ट में रखा हुआ ना, ये डब्बा लिफ्ट में रखा हुआ है, तो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वही तो डब्बा का होगा। लिफ्ट जा रहा है, डब्बा भी जा रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2। मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो नॉर्मल कितना आ गया, 24 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ गया, 24 न्यूटन। अब ये n काट मत देना, ये न्यूटन है, तो n इक्वल्स टू 24 न्यूटन, नॉर्मल आ गया अपना। ये अगर क्लियर है तो ये वाला ढंग से बनाओ। अब एक बार फिर से ट्राई करो सर, अगर नहीं किया है तो। चलो ये वाला देखो, फटाक से बता दे रहा हूं। इस केस में हम 1 kg का पहले मतलब बनाते हैं। 1 kg का देखो, फटाक से ढंग से बना लो। अब अगर समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूं, देखो विल गो लिटिल फास्ट। सबसे पहले मैं 1 kg का बनाऊंगा। जब 1 kg का बनाऊंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। नीचे की तरफ वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, n1, ठीक है। बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव लिखेंगे, n1 - 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2। n1 आ गया 12 न्यूटन, n1 आ गया 12 न्यूटन। 2 kg के लिए लिखेंगे, देखो जब 2 kg के लिए हम लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, तो नीचे लग रहा है 20, लिफ्ट लगा रहा है n2, ये वाला लिफ्ट लगा रहा है n2, और ये n1 1 kg नीचे की तरफ लगा रहा है। इस पे कितना है, n1 का वैल्यू निकाल चुके हैं 12, n1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12। देखिए ये इस पे 12 न्यूटन लगा रहा ना, तो ये इसे भी 12 न्यूटन लगाएगा, ये बना दिया मैं। इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्लियर है। बॉडी तो ये 2 kg भी ऊपर ही जा रहा है ना, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से 2 kg भी जा रहा होगा। इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऊपर के फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। 100% क्लैरिटी से दिमाग में घुसा लो ये चीज। जहां बॉडी एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, उस डायरेक्शन के अलोंग सारे फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, उसके ऑपोजिट सारे फोर्सेस को नेगेटिव ले लेंगे। हर प्रॉब्लम में यही करेंगे हम, हर इन एवरी सिंगल प्रॉब्लम यू हैव टू डू दिस, ठीक है। सभी क्या इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव, मतलब n2 नेट फोर्स लिखना है। क्या लिखना है मेरे को, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, n2 - 12 - 20 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो यहां पे कितना आ गया, n2 इक्वल्स टू 22 + 4 26, 3 kg 30 नहीं 26 से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 32 + 4 36 न्यूटन, 36 हो सकता है, ठीक है। ये 36 आ जाएगा ना, 30 और ऊपर की तरफ जा रहा है n, हाँ ठीक है 36 न्यूटन। आई होप ये चीज क्लियर है ढंग से सबको। चलो फटाक से वो सी वाला देखो। सी वाला का जब हम एफबीडी बनाएंगे 10 kg के लिए, तो नीचे की तरफ वेट बना देंगे इसका 100, ठीक है। नॉर्मल लगा रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो नीचे के फोर्सेस को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे 100 - n, इक्वेशन क्या लिखेंगे, 100 - n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। n - 100 मत लिखना प्लीज, ढंग से समझ लो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना,
तो नीचे वाला फोर्सेस पॉजिटिव है, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, पॉजिटिव लेना। 100 माइनस एन इक्वल्स टू 20, एन आ जाएगा 80 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ गया? 80 न्यूटन। क्लियर है ये? ठीक है, ये वाला देखो फटाक से, इसमें जब बनाएंगे ये वाला तो 5 केजी के लिए क्या बनाएंगे? ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, नीचे की तरफ से खुद का वेट लगेगा 50, नीचे की तरफ वेट लगेगा 50, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? नीचे वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो इक्वेशन लिखेंगे 50 माइनस एन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो दे दिया है 10, तो उसी से चलेगा ना। इस एक्सेलरेशन से ये चल रहा है लिफ्ट, उसी एक्सेलरेशन चलना चाहिए, उसी एक्सेलरेशन से चलना चाहिए। तो 50 माइनस एन इक्वल्स टू 50, एन कितना आ गया? 0 न्यूटन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब लिफ्ट फ्री फॉल में होगा, जब लिफ्ट फ्री फॉल होगा तो नॉर्मल 0 होगा, बॉडी जस्ट लूजेस कॉन्टैक्ट, बॉडी जस्ट लूजेस कॉन्टैक्ट। समझना? अगर आप सपोज एक लिफ्ट में बैठ गए, अगर आप एक लिफ्ट में बैठ गए और लिफ्ट का तार काट दें, ऊपर से काट दिया जाए, तो लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है और आप भी फ्री फॉल कर रहे हैं, लिफ्ट भी फ्री फॉल कर रहा है और आप भी फ्री फॉल कर रहे हैं, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0। सारे केसेस में नॉर्मल 0 ही रहेगा, इन ऑल द केसेस। वाई? इक्वेशन क्लियर है आपके सामने, देख लो। mg जो भी होगा, जो भी मास का है, mg नीचे की तरफ माइनस एन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज g। mg कट जाएगा, नॉर्मल 0 आ जाएगा। तो फ्री फॉलिंग बॉडीज में यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये तो एक चीज हो गया। मान लो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा होता, लिफ्ट किससे जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, तो क्या इक्वेशन लिखते हैं हम? 50 माइनस एन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल कितना आ जाता? नेगेटिव -50। इसका भी क्या मतलब है? नॉर्मल -50 है क्या? कितना है नॉर्मल? नॉर्मल कितना होगा इस केस में अगर नेगेटिव आ गया तो? 0। उसका क्या मतलब है? ये इससे कांटेक्ट में नहीं है, ये इससे कांटेक्ट में नहीं है, तो हुआ क्या? हुआ ये 5 केजी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। कांटेक्ट जब छोड़ देगा, जब ये कांटेक्ट छोड़ देगा, इसका मतलब ये 5 केजी क्या बेसिकली हवा में तैर रहा है। हवा में तैर रहा है मतलब इट्स बेसिकली अंडरगोइंग फ्री फॉल इनसाइड लिफ्ट तो नीचे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, मतलब ये 5 केजी इसके रेसेंट थोड़ा थोड़ा ऊपर आते रहेगा, ऊपर आके यहाँ चिपक जाएगा, क्योंकि लिफ्ट नीचे ज्यादा तेजी से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? पर हमारा वो कंसर्न नहीं है, आर कंसर्न इज नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा अपना। ठीक है, सो दिस वाज सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग नॉर्मल। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दीज प्रॉब्लम्स। सो व्हाट इज द लेसन दैट वी लर्न? सुन लो ध्यान से। द लेसन विच वी लर्न इज, अंडरस्टैंड दिस थिंग स्लोली, दैट जिस डायरेक्शन में हम बॉडी मूव करता है, दैट डायरेक्शन वी कंसिडर पॉजिटिव, forces acting in that direction we take as positive, and then we write an equation of net force and then we find acceleration. That is the way we do the things. ठीक है, so ये सारा नॉर्मल का प्रॉब्लम था। मैं आपको अब टेंशन का प्रॉब्लम दिखाता हूँ, वेरी इजी। अच्छा, जब नॉर्मल प्रॉब्लम्स का बात कर ही लिया तो एक छोटा सा चीज देख लो, एक और छोटा सा चीज देख लो। एक चीज होता है उसको बोलते हैं वेइंग मशीन। आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको? वेइंग मशीन बोलते हैं, या वेइंग पैन, जो भी बोल लो, जो भी बोले आप। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा करके दिखने में होता है, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे ऐसा करके एक मास रखते हैं तो ये उसका वेट बता देता है। ये क्या बता देता है? इसका वेट। सपोज 5 केजी रख दिए तो इसका रीडिंग कितना आएगा? या तो 50 न्यूटन बोल लो या 5 केजी बोल लो, जो भी, 50 न्यूटन बोलो या 5 केजी। आप मार्केट में गए होंगे तो देखे होंगे ना, वो जो कभी आपने चीनी खरीदा होगा या कुछ खरीदा, बोला 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 2 किलो गेहूं, आटा, चावल, जो भी दे दो, तो वो क्या करता है? निकालता है प्लास्टिक में रैप करके, उसके पास एक वेइंग मशीन होता है ना, उसमें रखता है, तो डिजिटल होता है। देखो डिजिटल मशीन दिखाता है 1 केजी 2 केजी, वो है, ये वो है, इसको वेइंग मशीन या वेइंग पैन। तो ऑप्शन में हो सकता है आपको न्यूटन में दिया रहे, क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे हो सकता है न्यूटन में दिया रहे तो न्यूटन कंसिडर कर लेना, ऑप्शन में अगर केजी में दिया रहे तो केजी कंसिडर कर लेंगे हम। ठीक है, पर एसेंशियली पॉइंट क्या है? इसका मास या वेट आपको बता सकता है कितना है। एसेंशियली व्हाट डज वेइंग पैन विल टेल यू, व्हाट इट टेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या बताता है? इसका वेट क्या बताएगा? इसका वेट नहीं, गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। इसका वेट नहीं बताएगा, ये इसका वेट नहीं बताता, वो ये बताता है व्हाट इट टेल्स। ये वेइंग मशीन या वेइंग पैन वेट नहीं बताता, वो ये बताता है व्हाट इज नॉर्मल दैट बॉडी एक्सर्ट्स ऑन इट, व्हाट इज द नॉर्मल दैट बॉडी एक्सर्ट्स ऑन इट।
इसका मतलब, और व्हाट नॉर्मल, ध्यान से देखना, व्हाट इज नॉर्मल दैट बॉडी एक्सर्ट्स ऑन इट, और व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी. व्हाट इज नॉर्मल दैट pan exerts on the body, that pan exerts on the body. बात एक ही है ना, क्यों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सिंपल. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ. या तो ये इस पे कितना नॉर्मल लगा रहा है वो रीडिंग देता है. वो 5 kg ये रीडिंग नहीं देता कि वेट मेरा कितना है, वो रीडिंग 5 kg इस केस में इसीलिए मैच कर गया क्योंकि इस केस में पैन इस पे 50 न्यूटन का नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि पैन रेस्ट पे है. अब ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि ये जो वेइंग पैन जो रीडिंग देगा वो इसका वेट नहीं देगा. रीडिंग पैन मेजर ये देगा कि ये इस पे नॉर्मल कितना लगा रहा है, उसका रीडिंग मेरे को मिलता है. मेरे को इसका वेट का थोड़ी रीडिंग मिलेगा, मेरे को तो इतना रीडिंग मिलेगा कि ये 5 kg नॉर्मल कितना जोर लगा रहा है उस पे, जो इस केस में 50 न्यूटन है, क्योंकि नॉर्मल इसका वेट 50 न्यूटन है. तो पैन नॉर्मल जो लगा रहा है ब्लॉक पे 50, पैन नॉर्मल लगा रहा है ब्लॉक पे 50, तो ब्लॉक पैन पे लगा रहा होगा 50. एक्शन रिएक्शन पेयर है इसीलिए. पर जैसे आपने देखा कि नॉर्मल वेरी कर सकता है ना, लिफ्ट में डाल दिया हमने, तो अगर हमने लिफ्ट में डाल दिया तो नॉर्मल क्या करेगा, वेरी कर जाएगा. तो अगर मैं इसको लिफ्ट में डाल दूं तो नॉर्मल वेरी करेगा, इसका मतलब इसका रीडिंग भी वेरी कर सकता है ना, क्योंकि ये क्या देता है, वेइंग पैन मेजर्स व्हाट इज द नॉर्मल दैट बॉडी एक्सर्ट्स ऑन इट. पर हमको क्या मतलब है, अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स दैट वेइंग मशीन इज एक्सर्टिंग ऑन द बॉडी. आपको ये याद रखना है, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स दैट पैन एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी. आपको याद ये रखना है. देखो सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, देख ध्यान से देखो. सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके मेरा वेइंग मशीन है, इसके अंदर एक डब्बा है, घटिया फिगर बन गया, थोड़ा सुंदर बना देता हूँ. देखो मान लो ऐसे करके लिफ्ट है, लिफ्ट वही अपना ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसमें रख दिया मैंने 5 kg का मास. व्हाट इज द रीडिंग, आपसे पूछा है फाइंड द रीडिंग, आपसे क्या पूछा, फाइंड द रीडिंग. अभी तक आपने नॉर्मल निकालना तो सीख लिया, सारे प्रॉब्लम हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल निकाल रहे थे ना. सो नाउ दैट इज फाइंडिंग आउट नॉर्मल हैज बिकम वेरी नॉर्मल फॉर अस. सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब ध्यान से देखो, जो 5 kg है, आप बता दो रीडिंग कितना होगा. चलो आप एक बार ट्राई करो, मैं बस क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए फटाफट. यू टेल मी द रीडिंग ऑफ दिस बैलेंस. आपको मास दिख रहा है, मैंने कितना ड्रॉ कर दिया उस पे. नाउ यू टेल मी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस. ठीक है, चलो फटाक से, और ज्यादा खेलेंगे नहीं यहाँ पे. बस ये तो सिंपल सा, मेरे को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको इसका, वेइंग मशीन का, वो क्या नापता है ये बताना है बस. तो चलो ये वाला केस सॉल्व करें फटाक से. कितना आएगा बताओ. अब तुम लोग क्या बताएगा, देखो. आई विश वी हैड ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो, होप विल हैव. सो यहाँ पे 5 kg है अपना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 5 है. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम इसके सबसे पहले. तो नीचे की तरफ लग रहा है वेट दैट इज 50 न्यूटन. नॉर्मल, जब ये वेइंग मशीन रीडिंग क्या देगा कि वेइंग मशीन कितना नॉर्मल लगा रहा है 5 kg पे, ये रीडिंग यही निकालना है मेरे को. बोला था मैं व्हाट इज द नॉर्मल दैट पैन एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी, तो मेरे को ये चाहिए, ये रीडिंग है उसका. ठीक है, अब बताओ बॉडी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले कन्वेंशन वाइज हमको बेसिकली नॉर्मल ही निकालना है, वो तो निकालते आ रहे हैं हम लोग इतने देर से. तो ये निकालना तो बहुत सिंपल है. क्या लिख देंगे, n - 50 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10. तो नॉर्मल आ गया 60 न्यूटन्स. नॉर्मल कितना आ गया, 60 न्यूटन्स. तो ये मेजर कितना देगा, 6 किलो. मेजर कितना देगा, 6 किलो. है कितना, 5 किलो. मेजर देगा 6 किलो. इसका मतलब अगर एक आदमी मूंगफली बेच रहा है, या इसका मतलब एक आदमी कुछ भी, अगर आप चीनी वीनी खरीद रहे हो, नॉर्मल दुकान पे जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लिफ्ट में बेच रहा है अगर आपको, तो आपको लॉस हो जाएगा. लिफ्ट में अगर वो बेच रहा है तो आपको लॉस हो जाएगा. क्यों, वेट है 5 किलो, दिखाएगा 6 किलो, आपसे 6 किलो का पैसा ले लेगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट. ठीक, अब यहाँ देखो, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको घाटा हो जाएगा. क्यों, क्योंकि नॉर्मल कम हो जाएगा. खैर वो तो हम देख लेते हैं. देखो बेसिकली पैन इस पे कितना नॉर्मल लगेगा वो तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं ना. ऊपर जो नॉर्मल लगा रहा है, नीचे इसका, या ध्यान इस पे ध्यान मत दो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना. क्या ऐसे करके है, वेइंग मशीन है सिर्फ, ये ब्लॉक नहीं है खुद का, ये उसका वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. तो ये नॉर्मल लगा रहा है ऊपर, नीचे वेट लग रहा है 20. अच्छा, बॉडी किधर जा रहा है, नीचे. तो क्या इक्वेशन निकलेंगे, 20 - n इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ नॉर्मल कितना आ गया, देखो 16.
तो एक्चुअल में 2 किलो का है पर मेजर कितना देगा 1.6 केजी। ये 16 है ना, 16 न्यूटन वेट आया तो कितना मेजर देगा, मेजर कितना देगा 1.6 केजी का। ओरिजिनली कितना का है, ओरिजिनली 2 केजी है, डिस्प्ले कर रहा है बेटा 1.6, तो दुकानदार को फायदा होगा घाटा होगा, घाटा हो जाएगा उसको। बेच रहा है ओरिजिनली 2 किलो बेच रहा है, दिखा रहा है 1.6 केजी, पर यहाँ फायदा हो जाता क्योंकि बेच रहा है 5 किलो पर आपको दिखा रहा है वो 6 किलो, आप तो 6 किलो का पैसा देंगे ना। सो देयरफॉर दीज आर सम सिनेरियोस। बेसिकली मेरे को इसे प्रॉब्लम्स नहीं कराऊंगा, जस्ट कॉन्सेप्ट कि वेइंग मशीन क्या देता है, बाकी प्रॉब्लम्स करना आना चाहिए और ये क्लियर रहना चाहिए कि वेइंग मशीन will measure the normal force which it exerts on the body. आपको बोला what is the reading of weighing machine, so you find the normal force which the weighing machine will exert on the body. Simple. तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उस पे जो वेइंग मशीन जो वेइंग पैन जो नॉर्मल लगा रहा है वो निकाल के आपको आंसर दे देना है। अब ऑप्शन में देख लेना, न्यूटन ने पूछा है केजी में पूछा, जिसने पूछा आंसर दे देना, आप कोई टेंशन का बात नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, नाउ विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑन टेंशन। चलो फटाक से देखो। Before starting tension, just let me once check everything is all right. Okay, then it's almost time, so we'll finish off this lecture. In next lecture, which I'll send the recordings, there will have tension and more other very nice problems on this particular F equals to MA. ठीक है, हरे कृष्ण।